السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجاہد ملت حضرت معین صاحب بمبئی خیریت سے ہیں؟ جی میں تو خیریت سے ہوں حضرت، بتائیے ارے کیوں یاد صاحب فرمایا؟ ہمیں دلدل سے نکالو ضلالت کی۔ یہ جی کیا سب چکر چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جائے کدھر نہ جائے۔ آج کل لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ کس چیز کو لے کر کنفیوز ہو رہے ہیں؟ ارے بہت ساری چیزوں کو لے کے، امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی کچھ کوئی تو تعزیہ امام لے کے کعبہ کے بیٹھا ہے۔ پیچھے تو نئی نماز ہوگی۔ حضرت صاحب اگر وہاں نہیں ہوگی تو پھر کس کے پیچھے ہوگی؟ امام کعبہ کے پیچھے نہ ہوگی، تو مفتی نہ کلیم ان حنفی آل کے پیچھے سعود تو ہو کے جائے گی کتوں نماز۔ کے پیچھے نماز ہوگی۔ مناظر الیکشن میں مفتی کلیم حنفی صاحب کے پیچھے تو ہو جائے گی۔ ارے حضرت اتنی بات سنیے، جن کا عقیدہ درست ہے، جو صحیح العقیدہ سنی ہے، ان کے پیچھے بلا جھجک نماز ہو جائے گی۔ میں باقی مفتی آپ کلیم جانیں۔ حنفی صاحب کا پوچھا، ان کے پیچھے تو ہو جائے گی؟ جی ان کے پیچھے بھی ہو جائے گی، کیا تکلیف ہے ان میں؟ نہیں، سنابل رضا صاحب کی۔ ثنابل رضا صاحب کی ان کے پیچھے نہیں ہوگی، اور کیوں پڑھیں گے ہی وہ؟ ہاں صحیح بات ہے، یہ بات آپ صحیح جی کہتے ہاں، آپ جا کر کیا، اگر آپ کے زمانے میں سرکار اعلیٰ حضرت ہوتے تو آپ کو اتنی چڑ ہے تو آپ سرکار اعلیٰ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے کیا؟ ہو۔ ارے صاحب اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ تو وہ اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا، آپ اشرف علی تھانوی ہیں؟ ارے وہ دیکھو، یہ ان لوگوں کا علم کا معاملہ تھا، اور بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ کن سے بڑی بڑی غلطیاں اب ہوئی؟ جیسے اب آپ کو بتاؤں میں، آپ کو الیاس قادری یہ مانتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا بہتا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ الیاس مانتے ہیں، الیاس قادری اچھا کا عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے۔ اب ہم کیوں مانے الیاس قادری کی بات کو؟ اچھا، الیاس تو قادری کوئی کیا عالم پھر؟ تھوڑی ہے، فاضل تھوڑی ہے کہ جو یہ مانے کہ صاحب قبر میں شیطان آتا بہکانے۔ اچھا، تو آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ کیوں مانے الیاس قادری کی بات کو؟ بہت صحیح بات ہے، کیوں مانے اس کی؟ اچھا، تو پھر یہ اہل سنت کا شعار کیوں بن گیا کہ قبر کے دفن کے بعد پھر قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے؟ اذان ایک الگ چیز ہے، اذان الگ قبر کیوں میں پڑھی جاتی شیطان ہے؟ کا اچھا، آنا ایک الگ چیز۔ قبر میں شیطان کا آنا الگ چیز ہے، میں اس بات پر دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ قبر میں شیطان آتا ہی ہے، میں آپ سے بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ قبر میں دفن کے بعد، تدفین کے بعد اذان کس وجہ سے دی جاتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کا فلسفہ ہے؟ اب الیاس قاضی کا اور دارالاسلامی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان ارے آتا ہے، حضرت ان کے اس لیے عقیدے کو اذان چھوڑ پڑھو۔ دیجئے، ان کے عقیدے اور بڑے بڑے ہیں، وہ گئے گزرے عقیدے ہیں ان کے، کیا ان کے ہے؟ عقیدے کو چھوڑ دیجئے۔ کچھ تو بتائیے ان کے کیا کیا گئے گزرے عقیدے الیاس قاضی۔ ارے ان کے غیر گزرے عقیدے اس طریقے سے ہیں کہ الیاس قادری سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ مجدد ہیں، تو اس کا سیدھا جواب بنتا تھا کہ جی میں مجدد نہیں ہوں۔ اس نے کھینچ لیا اپنے مسئلے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بھی مجدد نہیں تھے تو میں بھی مجدد نہیں ہوں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ربی العالمین۔ اور ایسی ہی کئی گزری باتیں ہیں سرکار لعنت ہو امام ایسے علی شخص پر، مقام کے بارے لعنت ہو میں اس اس نے۔ پر، لعنت ہو اس پر جس نے یہ بولا، جبکہ حضرت کا لقب تھا محی الدین جیلانی۔ محی الدین مانے دین کو زندہ کرنے والے۔ جی جی، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور اس استغفر نے اللہ، یہ بولنے کی اسے کیا ضرورت تھی کہ میں مجدد نہیں ہوں، بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے؟ اپنے آپ کو بڑے پیر صاحب سے کنیکٹڈ کر دیا اس نے، جی جی جی، مربوط کمپیئر کر کر رہا ہے۔ دیا کہ یہ اس لیول میں لایا کہ میں، ارے تو کس لیول کا آدمی ہے؟ حضرت کی کیا شان ہے، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ اللہ، 70,000 کا مجمع بغیر مائک کی تقریر سنتا تھا، یکساں آواز جاتی تھی، جیسے کہ قریب کا سن رہا ویسے دور کا سنتا تھا۔ بڑی صاحب اس نے تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی۔ ارے اس کے بہت گئے گزرے مسئلے ہیں حضرت، اس کی بات چھوڑیے۔ ارے صاحب میں کہتا ہوں کہ خانقاہ حشمتیہ نے بہت زبردست رد کیا ہے، لیکن بریلی والوں نے ایسا رد نہیں کیا جیسا خانقاہ حشمتیہ نے کیا ہے۔ اس بات کو تو ماننا پڑے گا۔ جی، خانقاہ حشمتیہ تو آج سے 25-30 سال پہلے سے دعوت اسلامی والوں کا رد کرتے آ رہی ہے۔ سرکار مشاہد ملت نے تو الیاس قادری کو الیاس پادری کہہ دیا تھا، اب اس سے بڑھ کر کوئی کیا کہہ سکے۔ اچھا، حضرت مولا مشاہد خان صاحب نے؟ جی جی، اس خاندان میں وہ واحد عالم تھے جو جن کا دبدبہ تھا علم میں۔ اگر وہ ہوتے نا کچھ ٹائم اور اللہ ان کو زندگی دیتا تو لاکھوں مرید اور ہو جاتے تھے۔ جی بے شک بے شک بہت تیز معاملہ چل رہا تھا ان کا۔ بے شک بے شک۔ اور اس خاندان کے وہ فرد وہ تھے اکیلے، حضرت مولانا عصمت علی صاحب کے اکیلے وارث تھے۔ دبدبا بھی تھا ان کا، ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا مقرر چھوٹا موٹا۔ جی جی جی، یہ عمار زیادہ مراد آبادی تو ان کے سامنے تقریر نہیں کر پاتے، ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے یا مار بھی دیتے، جھاپڑ بھی مار دیتے وہ تو۔ احمد رضا مراد آبادی کی کیا اوقات ان کے سامنے، اور ان کے جیسے کئی شمس الدین اور تو کئی ایسے چندہ خور مولوی، ان کی کیا اوقات ان کے سامنے۔
सरकार मुशाहिद मिल्लत, उनका दर्जा अलग है। शमसुद्दीन को ही बिठा देते साहब, है कि नहीं? अरे इनकी क्या औकात उनके सामने। शमसुद्दीन साहब मुझे कट्टर सुन्नी नहीं लगते, सुलह कुल्लियत का मामला लग रहा है उनके। सुलह कुल्लियत तो है ही भरी हुई उनके मौक़िफ़ के मुताबिक कि अगर आप वहाबी देवबंदी के साथ खाना खा रहे हैं तो उनकी वहाबियत आपके प्लेट में नहीं उठ के आ जाएगी, आप वहाबी देवबंदी नहीं हो जाएंगे। ये क्या तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है अंदाज में? एक आलिम का अंदाज है। तरीका तो ये भी नहीं है कि इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ी जाए। अरे नहीं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये शमसुद्दीन का तरीका एक अलग तरीका है कि साहब ना खा रहा है यहाँ। ये कोई तकरीर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कॉमेडी कर रहा हो? हाँ, ये कॉमेडी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कॉमेडी करते फिर रहे हैं आज के जमाने में। बात ये है कि इनके रिश्तेदार भी वहाबी हैं शमसुद्दीन के। अरे रिश्तेदारी वहाबियों में निकले चाहे देवबंदियों में निकले, अगर रिश्तेदारी वहाबी देवबंदी में भी निकल रही है तो होना ये है कि उनसे करके ताल्लुकी बढ़ती जाए। हजरत मसला ये हो गया कि जब से मुहद्दिस कबीर हजरत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने एक बाउंसर जो मार दिया ना शोएब अख्तर की तरह से, गैरी किस्टन जैसे घायल हो गए, तो ऐसे ही वो तनाबिल रज़ा के ससुर को जो देवबंदी हजरत ने बता दिया और जुमला पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठा। अरे तो उनको भी कौन सी तहकीक है कि सरकार तनाबिल मिल्लत के ससुर को वो देवबंदी कह रहे, किसी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान को देवबंदी कहा जाए तो ये ठीक है? अब वो मुफ्ती शमशाद घोसवी साहब ने तकरीर की वहाँ पीलीभीत में कि वो बरबिनाए शोहरत कहा था। वो फाजिल बरेलवी ने लिखा है बरबिनाए शोहरत कोई कहे तो अगर नहीं भी हो देवबंदी तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। अरे तो हजरत मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन पर हुक्म लगे, लेकिन कहना किसी को दुरुस्त है बिला तहकीक? नहीं साहब, बिना तहकीक, जब तक के मुकम्मल तहकीक ना हो। फिर मुकम्मल तहकीक ना होने की बिना पर काफिर होने की भी तहकीक मुकम्मल होना जरूरी है। शक में काफिर नहीं कह सकते हजरत, शक में काफिर नहीं कहते, पर उनके जो बड़े हैं, जो उनके बड़ों ने आप कहाँ मिसाल बांध रहे, मैं देख रहा हूँ हजरत। आप कह रहे हैं कि शक की बिना पर किसी को काफिर करार दे देना, वहाबी देवबंदियों से जो आप तमसील दे रहे हैं कि शक की बिना पर किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता है, तो हजरत सरकार आला हजरत ने जो इबारतें लिखी हैं 4 मौलानाओं के बारे में, हाँ, तो उनके आगे और कि आला हजरत ने लिखा है कि इनके कुफ्र पर शक भी करना कुफ्र है। वो तो एक अलग मैटर है। इनको काफिर, ये अलग मैटर है, तो उनकी जुर्रियत और क्या कह रही है? मन फकत शकर क्या है वो? मन शक्कर मन कशका भी कुबरी आजादी फकत शकर है जी। वो हजरत ने जो इबारत बढ़ाई है कि जो इनके कुफ्र अज़ाब में शक करे वो काफिर है, तो वो अब उसमें एक मैटर फंसता है हजरत। आप समझेंगे बात को? समझाइए, समझता हूँ मैं। हजरत ने ये कहा जो इनके चारों के कुफरिया कायद जानने के बाद जी, जो भी कुफरी इबारतें उसको जानने के बाद अगर उसको माने और तस्लीम करे, वो कायल हो, जब वो काफिर होगा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत की नजर में भी देवबंदी मुसलमान है, क्योंकि ये पैर लगाइए ना कि जो इन इबारतों को जाने, अब जो नहीं जानता तो मुसलमान है, वो भले ही उनको मान रहा हो लेकिन उन इबारतों को नहीं जानता तो मुसलमान। ठीक है, जो नहीं जानता इबारतों को, ऐसा तो नहीं हो सकता हजरत की जो देवबंदी है वो अपनी देवबंदियत से वाकिफ ना हो कि मैं देवबंदी क्यों हूं। इबारतों को नहीं जानते। मेरी बात सुनिए, उन इबारतों को नहीं मानना, आप भी इस बात को मानते हैं ना? आप भी तो मानते हैं कि जो इबारतों को नहीं जाने तो मुसलमान है। और कुफरिया कायद भी हैं। आप अगर किसी उनके देवबंदी किसी आम इंसान से भी पकड़ कर पूछेंगे ना, चलिए उस इबारत पे ले लीजिए कि नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, बैल बकरियों भैंसों का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। कोई भी नहीं तो आप किसी आम देवबंदी को पकड़ कर पूछ लीजिए कि नमाज में हुजूर का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, वो साफ तौर पर आपको कहेगा कि नमाज नहीं होगी। अरे नहीं, कोई नहीं कहता। कसम खा के कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ कि ऐसा आज तक मुझे कोई नहीं मिला कि जिसने ऐसा कहा हो। कहाँ जी रहे हजरत, आप किसी से बुलाकर मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, लेकिन कसम नहीं खाऊंगा। आप मानो न मानो, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, कुरान हाथ में भी उठा के कह सकता हूँ कि शायद ही कहीं मिला हो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आमतौर पे क्या खास तौर पे भी नहीं कह सकते। कोई होगा ऐसा बदखबीस, वो बद किरदार बदबख्त खबीस कमीन जो ये लफ्ज बोले और ये इस तरह का इकरार करे, मरदूद किस्म का आदमी, वो उसे मरदूद किस्म का ही बोलेंगे, वरना आमतौर से तो हमें हिंदुस्तान भर में नहीं मिला। अच्छा, आपको कभी मिला? तो क्या? हाँ, मुझे बहुत लोग मिले हजरत। अरे तो फिर आपने उसके झापड़ क्यों नहीं मारा? नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए, आपने उसको झापड़ क्यों नहीं मारा? आपने उसको झापड़ क्यों नहीं मारा? पटका क्यों नहीं उठाते? हजरत इनके आगे जब ख्याल, ये बताइए, तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर ए नबी, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो ख्याल फिर ये किधर लेके जाएगा?
ख्याल ले जाएगा, लेकिन इनका मानना ये है, इनका अकीदा ये है कि नहीं, जो वो इबारत जिस कुछ तरीके से लोग उसको होते हैं, उसी हर तरीके से किस्म के पढ़ी लोग जाए। होते हैं, सबको नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अगर सबको नहीं कह सकते काफिर, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हुजूर ने बात तस्लीम खुद करता हूँ। अच्छा सुनिए, सहाबा किराम से अगर फरमाया, सबको काफिर नहीं कह सकते, सल्लू कमा अगर राइतमुनी सबको काफिर उसल्ली, नहीं नमाज कह सकते, ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। सुनिए, अगर सबको आप कह रहे हैं कि काफिर नहीं कह सकते, तो आप ये सबको गुस्ताखे रसूल भी नहीं कहेंगे। एक बात सुनिए आप, जैसे थानवी आप साहब की सबको इबारत पर गुस्ताखे कुफर रसूल किया भी नहीं फतवा, कहेंगे, फजीलत क्योंकि बरेलवी लाए, फजीलत जितने बरेलवी देवबंदी, हुसामुल जितने हरमैन लेके आए। वहाबी हैं, वो उनका ईमान अच्छा, इल्म ये गैब तो सुनो मुस्तफा आप, पर नहीं है। हुसामुल हरमैन अरब से लाए थे आप? जी, तो अरब के उलमाए लोग जब अरब के फतवा मुसलमान थे। थे और जैसी फतवा हुसामुल हरमैन ले आए तो काफिर हो गए। नहीं, नहीं तो सरकार उसी के आला बाद हजरत तो के काफिर दौर मान में रहे थे। उलमाए अब अरब 100 साल से अहले तो सुन्नत नमाज वल नहीं हो रही, जमात 100 साल पढ़ते। से तो मान हजरत, रहे हैं कि आपने नमाज ही नहीं तारीख हो का रही। मुताला, आपने तारीख का मुताला नहीं किया। वहाबी हजरत उसमें 33 उलमा के फतवे हैं ना, 33 आले यहूद, आले सऊद नहीं, वहाँ पर 33 कब से उलमा आई? के फतवे हैं ना, उसमें 33 उलमा के। आले सऊद वहाँ अरे पर हजरत कब से आई? सुनिए हजरत, सही, हुसामुल आले सऊद हरमैन में कब से आई वहाँ 33 पर? फतवे हैं उलमा के, मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा। जी, तो उस आज वक्त भी उनके उलमाए पोते अरब, पड़पोते तो जिंदा होंगे, किसी को से उनके मुलाकात तो करा, पोते कौन से वो पड़पोते आलिम थे जिंदा है। कि जिनके पोते मौजूद हैं, पड़पोते मौजूद हैं, वो कहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर? अपने घरों में पढ़ते होंगे, अल्लाह जाने कहाँ ये पढ़ते तो होंगे, एक लेकिन शक वाली जिनके बात ईमान है, और शक अकीदा वाली जिंदे बात है। हैं जी, जिनके शक के ईमान और ऊपर अकीदा आप किसी के ऊपर सलामत फतवा नहीं दे हैं, सकते। जिनके ईमान और अकीदे सलामत हैं, वो अपनी नमाजें बचा जैसे रहे होंगे। आपने हजरत, कहा घर में पढ़ते अपनी, होंगे या जी नहीं पढ़ते होंगे, दोनों बातें हो गई। जी, मैंने कह दिया नहीं घर में नहीं पढ़ेंगे, आपने कहा पढ़ते होंगे, दोनों का मामला ऐसे ही, मेरा भी दोनों आपका का भी। मामला है। हजरत, मैंने कहा कि तो अगर अब वो इज़ा अहले जान ईमान, एहतिमालो बतल अहले सुन्नत से इस्तिदलाल, ताल्लुक फुक़हा रखते कहते हैं जब होंगे, एहतिमाल आता है, शक आता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है, फिर इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता शक ये में। मैंने इस्तदलाल किया नहीं उस बात पर। मुमकिनात तो में से है आपने ये ये कि कहा हो भी कि सकता है और पढ़ते नहीं भी हो होंगे, सकता है। चलो ये भी बात मान ली कि घर मेरी में हुज्जत, पढ़ते होंगे, ये मेरी भी आपकी हुज्जत मान ली उन घर में उलमा पढ़ते पर है, होंगे, ये भी मान ली घर में मेरी पढ़ते हुज्जत होंगे। उन उलमा मैं पर मान है तो रहा हूँ ना, जिनके घर में फतावे सरकार पढ़ते आला होंगे। हजरत ने लाए थे। आगे उनकी तो औलादे, उनकी नस्लों की जमानत मैं नहीं लेता हजरत। जो और जिन चलिए, उलमा के अरे फतावे मैंने सरकार आला माना हजरत कि ने घर लाए में थे, पढ़ते होंगे, उनको आगे मानना है। बढ़िए। घर में पढ़ते होंगे या अब वो नहीं शादी पढ़ते ब्याह होंगे, कहाँ करते या होंगे, आले पीलीभीत सऊद में में, आके या मुबारकपुर में आके, बरेली में आले आके, सऊद शादी में ब्याह मिल कहाँ गए करते होंगे या होंगे? कहीं मिल गए होंगे हजरत। अब उनकी जमानत अहले सुन्नत पर नहीं है। नहीं, क्यों आप नहीं ये है? भी नहीं कह सकते जितने अरब के हैं वो सारे अहले हदीस हो गए, वो सारे सल्फी हैं। आप ये भी नहीं कह सकते अरब वाले। तो सुन्नी तो मानोगे ना आप, सुन्नी तो मानोगे ना, सुन्नी है सब। सुन्नियत है वहाँ पर हजरत, सुन्नियत है, सुन्नियत क्यों नहीं है वहाँ पर? तो ये जाए अगर ना, वहाँ हजरत सुन्नियत मौलाना नहीं है, इदरीस हजरत साहब जाए और उन्हें कट्टर सुन्नी बना के आए, खिलाफत दे के आए वहाँ जाके। क्यों आपने बना लिया कट्टर सुन्नी उन्हें? मैं तो जाऊंगा जब आप क्यों, आपने मुलाकात कट्टर करेंगे, सुन्नी बना लिया उन्हें? आपने कट्टर सुन्नी बना लिया तो उन्हें? मैं मुलाकात करूंगा ना जब जाऊंगा। मुलाकात करेंगे, आप उनके साथ खाए पियेंगे, उठे बैठेंगे। अजहरी मियाँ गए तो थे गुस्ले काबा देने। गुस्ले काबा अजहरी मियाँ ने दिया, हाँ, उसके बाद फिर क्या मुलाकात नहीं की हजरत ने वहाँ पर? खिलाफत नहीं दी वहाँ सबको, वो लोगों को, किन लोगों को खिलाफत दी? वहाँ के इमामों को वहाँ की खिलाफत दे गवर्नमेंट के के नहीं आए किसी अजहरी कानून मियाँ को साहब? खिलाफत दी कि वहाँ के उलमा को खिलाफत दी? क्या अजहरी अच्छा, मियाँ वहाँ नहीं का जानते इमाम थे कि यहाँ सब इतने लोग हैं? हजरत से जब मुसाफिर करने क्या आता तो वहाँ हजरत ने के इमाम को, चपाटा नहीं मारा क्या था वहाँ उसके? के इमाम को खिलाफत दी? अच्छा, अजहरी में जब गुस्ले क्या काबा वहाँ के देने गए इमाम थे, के पीछे नमाज पढ़ी? वो जब इमाम हरम हजरत या से मुसाफिर उनके करने आता तो वहाँ हजरत ने वहाबी उसको देवबंदियों चाटा से नहीं मारा मुलाकात था? की? किनसे मुलाकात की अजहरी मियाँ ने, किसको नहीं, खिलाफत दिया? अजहरी मियाँ बताइए से मुझे। जब वो इमाम हरम मिलने आया था तो अजहरी मियाँ ने चाटा नहीं मारा था उसके गाल में? अजहरी मियाँ से कब मिलने आए इमाम हरम? तो कौन जब अजहरी गुस्ले मियाँ काबा कब देने नमाज गए पढ़ने थे गए वहाँ पर? हैं? अजहरी मियाँ कब नमाज पढ़ने गए थे वहाँ पर? गुस्ले काबा देने तो गए थे, मुलाकात नहीं करेंगे? जब गुस्ले काबा देने जाएंगे खाएंगे पियेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बगैर बातचीत किए कैसे चले जाएंगे खाने काबा आपके में? लिए अजहरी मियाँ हुज्जत है क्या? ये बात आपने बहुत ऊंचे आपके लिए दर्जे अजहरी मियाँ काबिल दलील है क्या? तो बताइए, मैं और बातें करूँ कि की। अजहरी मियाँ ने क्या साहब क्या ने किया तो है, खुद क्या ये क्या कहा कहा है। था कि अजहरी मियाँ हमारे लिए काबिल, वो उन्होंने खुद वो माना था उनको तकलीफ के हिसाब से। कब माना था? आज से 10-15 साल पहले, 15 साल और पहले। 10-15 साल के बाद क्या मामला हुआ? अब अल्लाह जाने क्या क्या हिसाब। अल्लाह जाने, तो आप क्यों नहीं जान रहे हजरत? अब क्या किया जाए हजरत, आप क्यों नहीं जान रहे? बड़ा मुश्किल कुछ देर के लिए अजहरी मियाँ साहब से अल्लामा इदरीस रज़ा खान साहब ने तर्क ताल्लुकी रखी जब वो ततहीर का साथ दे रहे थे। अरे साथ ऐसे नहीं दे रहे, गलत मामले में नहीं दे रहे थे। अरे हजरत ठीक है, जो भी बात है, उन्होंने फतवा दिया, उनके ऊपर उसके ऊपर हुक्म लगा दिया,
तो उनसे हमारा कोई मसला ही नहीं है, हमारे सर के ताज हैं वो। बड़े कोई बात मसले हुई, लगा दिया उन्होंने फतवा, बड़े तथहीर पर मसले फतवा लगा दिया, तथहीर ने तौबा कर ली और अब उस तौबा पर वो कायम नहीं है। हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब मकबूल हैं, और देखो गलतियां उनसे हुई, हम भी मानते, सबसे होती गलती। अरे हजरत गलतियां लेकिन- हुई ना हुई, बजाते बशरी गलती होती है सबसे, ठीक है हजरत, गलतियों का इनकार नहीं है। आपने गलती की अपनी इबारतों में, आपको उससे तौबा करनी थी और अपना मसला साफ करना था, अपना दामन साफ करना अब था। जो भी किताब में लिखा हो मिसाल गलत दे दी हो सकता है, ये बात जी, नहीं है। एक बात नहीं है, सिर्फ वो बेबस वाली इबारतें नहीं है, उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें करी है। कहा कि दरगाहों पर आज ये हो रहा है जो मंदिरों और गुरुद्वारों में होता है, तो मज़ारों को मंदिर और गुरुद्वारों से तशबीह देना सही है। तशबीह का मतलब ये नहीं है कि वैसे ही बता दिया, मतलब मिसाल वैसे ही दिए नहीं कि वहाँ बताया, भी औरतें तशबीह, आती हैं, चलिए वहाँ भी मिसाल दे दी, वहाँ भी मिसाल दे दी, बेपर्दगी क्या होती है, मिसाल वहाँ भी देना लेडीज ठीक है? आती हैं, ये मतलब क्या था मिसाल देना ठीक है? ये मतलब था कि क्या मिसाल देना देने से ठीक कि है? बेपर्दगी हो रही है आज मज़ारात पर, ये मतलब क्या था। मिसाल देना ठीक है? नहीं, ये बताओ, वो मिसाल से ही तो समझाया जाएगा ना, कुरान में है कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ताला भी इसी तरह मिसालें दे दे के समझाता है, कुरान की आयत है, तो अल्लाह ताला मज़ारों को कुरान की मंदिर और आयत है गुरुद्वारों से कज़ालिका तशबीह दी। यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। ये आदत तो वहाबी और देवबंदियों की है कि वो बुतों वाली इबारतों को उठाकर औलिया अल्लाह पर फिट करते हैं, तो ये उसका अंदाज़ बयान नहीं है। नहीं, वो अहले हदीस की है, अहले हदीस वो है, वो कुरान की आयत, वल्लज़ीना तदऊना अहले मिन हदीस दूनिही नहीं, मा यमलिकून सारे मिन बद क़ित्मीर। मज़ाहिब फिरके, सारे बद उस मज़हब जमाने फिरके में औलिया उन अल्लाह बुतों थे नहीं, की जब कुरान नाजिल हुआ तो सहाबा किराम थे, तो ये औलिया अल्लाह पे फिट कर देते हैं अहले हदीस लोग, बस। सारे लोग करते हैं, इन वहाबी तदऊहुम देवबंदी ला अहले हदीस यस्मऊ को सारे लोग फिट दुआअकुम, करते हैं। अगर तुम उनसे दुआ करोगे तो सुनेंगे नहीं, वो तो उनके बारे में है, बुतों के बारे में है, हाँ जी, छोड़िए उन बातों को, समझ गए। वो अगर जिस तरह फिट करते हैं तो क्या ये मंदिर और गुरुद्वारों को मज़ारों से तशबीह देना सही हुआ? हजरत साहब क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल मसले में आ गए तो मुसलमान, बड़ा मुश्किल सुन्नत मसला वल हुआ है जमात। हजरत, पहले मुश्किल सुन्नत के मसाइल को टुकड़े और टुकड़े आप हो मुश्किल चुके हैं, करते जा रहे रज़वी हैं। अलग, अशरफी अलग, अशमती अलग, अशमती में दो गुरे हो चुके, एक जो है कि वो अब्दुल मुस्तफा रज़ोलवी वो अलग हैं, तो आप और किन ये के साथ हैं हजरत? आप भिवंडी, किन के साथ हैं? आप किन के साथ हैं? हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब भिवंडी आप वाले किन के साथ हशमती हैं? हैं, मैं कह ये रहा हूँ भी आप अलग किन हैं, के साथ हैं? ये भी काबिल आदमी है वैसे भिवंडी वाले। बहुत ग्रोह बन गए, बहुत ग्रोह बन गए, आप किन के साथ हैं? हजरत साहब हम तो अजमेरी सुन्नी है, अब क्या करें, तो कट्टर आप जमात। अजमेरी सुन्नी हैं, तो इन मसाइल में क्यों पढ़ रहे हैं आप? आपको क्या मतलब इन चीजों से? आप लोग अजमेर शरीफ आ जाए तो मैं सब हल करवाऊं, मतलब आगे बढ़े, फिर अपन लोग हल करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी हुई है, हजरत साहब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग लेके सुलह आए नहीं करवा रहे हशमतियों हैं को भी हजरत, और इधर आप से सुलह रज़वियों नहीं को भी। करवा रहे हैं, सुलह नहीं, बस आप आग लगाते हैं हर जगह, इसको फोन करके आग लगा दी, अरे उसको फोन करके आग लगा दी। आपको कश्फ हो गया क्या? कश्फ हो गया आपको? मुझे कश्फ हो बिल्कुल कश्फ नहीं हुआ हजरत, कश्फ में तो आप हैं, गया। अरे आपने समझ लिया कश्फ कि में आप आप आग हैं। लगवाते हैं। कहीं हसमतियों को फोन करके बरेलवियों की बुराई कर दी, कहीं बरेलवियों को फोन करके हसमतियों की बुराई कर दी, क्या अरे मसला है हजरत, आपका समझाएंगे जरा? अब आप तो खुद ही हसन बिन साहब की तकरीर सुना, वो तो खुद अजहरी मियां की धज्जियां उड़ाते थे। धज्जियां उड़ाते थे हैं? जी, धज्जियां उड़ाते थे। उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते आज भी? आज की आप सुना दीजिए आज की। अब वो सनाबिल रजा के जो भाई हैं, जरताब रजा, वो अलग चल रहे हैं, वो अजहरी मियां के फेवर में है, और आप कह रहे हो कि अजहरी मियां ऐसे हैं। मैंने बुरहान कहा रजा कि अजहरी मियां के अजहरी मियां फेवर ने में है, जब और सनाबिल रजा मुखालिफत में, दोनों भाइयों में आपस में टकराव होगा। मुखालिफत अजहरी मियां से खत्म हो चुकी है हजरत, उन्होंने तस्कीर पर तौबा का हुक्म लगा दिया। कब वो बरी लगाया? हो गए। हजरत का इंतकाल हुए 5 साल हो गए। हाँ, उन्होंने तस्कीर पर फतवा लगाया, तो अब तो मानना चाहिए ना 20 साहब को, अजहरी मियां को मानना चाहिए। अब तो मानते हैं? उन्हें कौन बुरा कह रहा है? उनके बारे में किसी ने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया? अरे वो दबाव पड़ा ना पब्लिक का कि इनके बारे में अगर कुछ बोला तो पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी, तो इसलिए भाई क्यों दबाव पड़ा? दबाव तो पहले से था, रुख मोड़ लिया कि दबाव अजहरी तो मियां के पहले दामन से में आ था। जाओ, अजहरी मियां के दामन में आ 2015, जाओ। 2016, 2017 तक तो रद्द चल रहा था अजहरी इसीलिए मियां तो का। जरताब रजा अजहरी मियां के दामन में आ गए कि इनके बारे में। अजहरी मियां का जरताब मियां ने अजहरी मियां का रद्द किया है, बहुत रद्द किया है उन्होंने भी, है ना? तौबा के मामले में वो भी साइड हट गए बेचारे, वो भी अब जब मुर्गे अजहरी बकरे के मियां ने चक्कर में अजहरी तस्कीर मियां पर के तौबा दामन का में आ हुक्म गए। लगा दिया। किसका? तो आ गए तो अच्छी बात है हजरत,
اور یہ بڑا مشکل ہے منع حضرت، کیا؟ یہ کیا چکر چل رہا ہے، کبھی مخالفت کبھی موافقت. ارے تو حضرت جب اظہری میاں صاحب کبھی نے تکفیر پر مخالفت توبہ تھی کا تو حکم کبھی لگا موافقت دیا تو تھی. وہ ان کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. حضرت صاحب ہم لوگ کدھر جائیں بتائیے آپ کہیں مت جائیے کدھر حضرت، آپ جائیں. کہیں مت کبھی جائیے، آپ حزبیوں اپنے کی گھر پر طرف سے رہیے طوفان اٹھ اور رہا ہے تو لوگوں کو کبھی فون پیلی کر کے بھیت. آگ لگائیے. ہم آگ لگا رہے ہیں کہ آگ بجھانے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ آگ بجھانے کی آپ بات صلح کر رہے ہیں امام تو حسن علیہ تو السلام، امام برائی حسن علیہ کیوں السلام ہو نے رہی ہے صلح سب کرائی جگہ تھی، کی؟ دو گروہوں آپ کے سب درمیان جگہ کی صلح برائی کرائی تھی کیوں ہو حضرت رہی امام ہے؟ حسن علیہ آپ السلام نے. تطہیر تانڈوی کے چیلے کو فون کر کے سنابل میاں کی برائی کریں گے؟ ارے تو یہ آپ صاحب، صلح کروا رہے ہیں کہ کچھ تو فرما دیجئے، بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے. یہ اب صلح کا مفتی طریقہ کلیم ہے. انفی صاحب نے جو رد کیا 3 تاریخ کو، اس میں بستی بستی قریہ قریہ کے نعرے لگے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے نام کا جلسہ تھا تو ان کے نام کے آگے علیہ السلام بھی نہیں کہا کلیم انفی صاحب نے. نہ امام ان کا حسن کو مسئلہ علیہ الگ ہے، السلام ٹھیک بولا، ہے. نہ سید فاطمہ علیہ زہرا کو علیہ السلام السلام اگر بولا. کوئی نہ کہے، اگر علیہ السلام کوئی نہ کہے ارے تو جب سرکار امام علی مقام. بخاری نے لکھا، بڑے پیر صاحب نے لکھا، جن کے سلسلے میں لوگ مرید ہو رہے ہیں، تو کیوں نہیں کہتے علیہ السلام؟ انہیں وہ تو ان کا اپنا طالبین میں مسئلہ ہے حضرت نے حضرت، لکھا ہے، مجھے اس امام بارے میں حسین نہیں کو علیہ پتا. السلام لکھا، امام حسن کو علیہ السلام لکھا. تو حضرت سے بڑا عالم ہے کوئی؟ بڑے پیر صاحب سے بڑا عالم کوئی ہے بریلی میں، پیلی بھیت میں، بدایوں میں، ادھر ادھر؟ ایک طرف حضرت کو مانتے بھی ہیں لیکن علیہ السلام یہ کہنے ان میں کا کیا اپنا معلوم کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہے؟ یہ ان کا اپنا علیہ مسئلہ ہے. السلام کہنے میں کیا معلوم پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے لیکن امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہیں گے، کہ نہیں کہیں گے امام حسین یہ کو. ان کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے ارے اس بھیا بارے میں نہیں ان کہہ سے رہا تو کوئی مت کہو تعلق یار، تم نہیں. سے کوئی زبردستی نہیں کروائے گا، یہ لیکن ان کا امام حسین کو اپنا علیہ مسئلہ السلام ہے، نہیں کہہ کر کے یہ تم ان یہ کا بتانا اپنا چاہ رہا ہو کہ مسئلہ ہم ہے. لوگ نہیں کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ عقیدت مکمل نہیں ہے ابھی. اچھا، عقیدت والا تو مکمل کہے نہیں گا ہے تو امام حضرت حسین علیہ السلام، آپ کو اگر حضرت علی چاہیے علیہ ان سے تو السلام، ان سے سیدہ بات کر فاطمہ کے فون الزہرا علیہ السلام. کریے، ان سے فون کر کے بات کریے اب حضرت. کوئی مجھے کہے اس کہ نہیں مسئلے صاحب وہ میں تو رافضیوں کا طریقہ ہے، تو امام بخاری کے رافضی تھے، بڑے پیر صاحب نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے خود لکھا ہے. ان کو ارے بھی حضرت رافضی میں کہو ان کہ کا بڑے کوئی پیر صاحب وکیل کو؟ نہیں ہوں، میں ان کا کوئی شاہ وکیل عبد نہیں العزیز ہوں، مجھے ان محدث سے نہیں دہلوی لینا علیہ دینا. السلام لکھا، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد مجھے الحق ان محدث سے دہلوی، کوئی لینا دینا نہیں، حضرت میں ان حاجی کا انوار وکیل اللہ نہیں فاروقی، ہوں. جامع نظامیہ حیدرآباد ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ان کا وکیل نہیں ہوں، اس وہ مسئلے میں ان پہلے سے تو بات مولانا کریے. ادریس صاحب بھی علیہ السلام کہتے تھے. مجھے ایسا دھیان ہے صفی پور میں جب آئے تھے تو معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی علیہ السلام کہتے تھے، بہت اچھی بات لیکن ہے. بریلی والوں کے ڈر سے علیہ السلام کہنا بند کر دیا ادریس صاحب نے. اور آج بھی بریلی کا ڈر اتنا زیادہ ہے مفتی شمس الدین کے اوپر، مفتی کلیم انفی کے اوپر، شہزاد عالم کے اوپر اور ادریس ثنابل صاحب کے اوپر کہ علیہ السلام نہیں کہیں گے زندگی بھر. ارے حضرت ٹھیک زندگی ہے، بھر علیہ نہیں السلام کہیں نہیں گے. کہیں میں گے، کہہ پر رہا ہوں ذکر کہ اہل مشکل ہی بیت، ہے کہیں، کبھی مشکل ہے کہ ذکر کہہ اہل دیں. بیت 2018 سے محران رضا، مسلسل سہران جاری ہے. رضا اور زلطاب رضا اور شناول، یہ کوئی بھی علیہ السلام نہیں کہیں گے. ہاں ارے تعزیہ حضرت ان ضرور سے بنائیں گے، اس کیونکہ مسئلے تعزیہ میں آپ بھی بنائیں گے بنائیں گے، لیکن علیہ بالکل السلام نہیں بنائیں کہیں گے، گے. بالکل بنائیں گے. ارے تعزیہ تو بنا رہا ہوں. شاہ عبد العزیز صاحب نے جب تعزیہ کے بارے میں لکھا ہے تو وہ دلیل مل جاتی ہے ان لوگوں کو، رضویوں کو، کہ انہوں نے منع لکھا ہے. تو انہوں نے تو علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو، وہ دلیل کیوں نہیں ملتی؟ ان سے بات کریے حضرت، ان سے بات کریے، حضرت بریلویوں کو صاحب فون ہم کریے. لوگوں کو چکر میں ڈال دیا ان مولویوں نے، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے. امت کدھر جائے؟ اب آپ اب کیا بتاؤ، کریں؟ حج کرنے جائیں کہ نہیں جائیں لوگ؟ 7 جمعے چھوڑے وہاں جا کے. یہ کہتے ہیں جائیے جائیے، نمازی نہیں بالکل ہوگی، جائیے، جمعہ بھی مت پڑھو، تو بالکل 7 جمعے جائیے، چھوڑ کے آؤ. بالکل جائیے، اور کفن بالکل لے کے آئے جائیے. کہ نہیں بس آئے؟ عقیدوں کفن کے لے کے پیچھے آئیں گے تو کفن ان سے ہی لینے کے لیے آنا پڑے گا، کھجوریں بھی ان سے ہی لے کے آنا پڑے گا، اور جی وہاں پر پیسہ دے ذبح کے لیتے گوشت ہیں بھی حضرت، ان کا پیسہ دے گوشت کے کھانا لیتے ہیں پڑے گا. حضرت، پیسہ ارے دال پیسہ دے بھاپ کے لے کوئی لیتے نہیں ہیں. کھاتا حضرت. آلو بیگن ٹماٹر مسلمان کی زندگی نہیں ہے آلو بیگن ٹماٹر کھانے کی، کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں جائے تو 40 دن آلو بیگن ٹماٹر کھا کے آئے، شاکاہاری اچھا، کھا کے آئے. مسلمان مانساہاری ہوتا ہے، فطری طور سے مانساہاری ہوتا ہے، وہ تو گوشت کھاتا ہے. ہم تو اب یہ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہم ذبح کر لیتے ہیں. ارے کیا تم چھری چاقو لے کے جاتے ہو انڈیا سے حج کرنے جاتے ہو؟ تو چھری چاقو کس کے ہوتے ہیں؟ ان کے ہی چھری چاقو ہوتے ہیں. آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، نماز کی اور بات حضرت کریے. بکرا بدعقیدوں بکری کے وہاں پیچھے، اپنے گھر میں لا کے وہاں بدعقیدوں پر کے پیچھے، وہاں ہوٹل میں لا کے بکرا بکری ذبح نہیں کر سکتے، مرغا مرغی بھی ذبح نہیں کر بدعقیدوں سکتے. کے وہاں پیچھے پرمیشن نہیں ہے تو مرغا مرغی یا بکرا بدعقیدوں بکری کے اپنے ہوٹل میں پیچھے لا کے ذبح نماز کرو. نہیں ہوتی. حضرت علماء صاحب، کا اجماع ہے اس بات پر، بدعقیدوں کے حضرت پیچھے صاحب نماز اجماع ہے. فاسد ہے. 50 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے، اس میں 2 لاکھ کم بیش عالم، یہ 50,000 عالم مان لو، تو وہ تو پوری دنیا کے آ رہے ہیں. جامع ازہر مصر میں شایان رضا اظہری پڑھ کے آئے، جن کو صلح کلی کا لقب مل چکا کہ نہیں مل رہا. جامع ازہر میں شایان رضا نے پڑھا تو انہوں نے اظہری لکھنا بند کر دیا ڈر کے مارے. اب شایان رضا صاحب اظہری نہیں لکھتے، قادری لکھتے ہیں یا حشمتی لکھتے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ ڈر کے مارے. ارے حضرت ان کی آپسی باتیں ہیں، ان سے آپ کو کیا تعلق ہے؟
क्या शायन भैया का बाइकाट हो गया है क्या? शायन भैया अब खानदान से नहीं ताल्लुक रख रहे हैं, है ना, साथ में उठ रहे बैठ रहे खा रहे हैं। हजरत कहाँ हो आप? किसने उनको सुलह कुल्ली कह दिया? अरे तौबा करवाई थी उनसे, जामे अजहर गए थे जब। तौबा करवा ली ना, अब सुलह कुल्ली तो नहीं रहे। तो तौबा करवा ली, लेकिन तजदीद ईमान निकाह तो नहीं करवाया ना, खाली तौबा से काम थोड़ी चलेगा। अहमद जोखनपुरी इस वक्त मिस्र में है, जामे अजहर में है, वहाँ के बच्चों को दस्तार बांध रहे हैं, वहाँ के उलमा के साथ उठ बैठ रहे हैं, उन पर आप फतवा लगाएंगे? और ये क्या पकड़ की है आपने, बहुत ऊंचे दर्जे की बात की है कि यहाँ आके वो सगीर जोखनपुरी हदीस पढ़ेंगे, ला तो आके लूंगा, ला तो जालिस लूंगा, ला तो शारिबूंगा, ला तो आने को हूँ, कि अल्लाह के सुनने फरमान के साथ खाओ मत पियो मत, इनके साथ बैठो मत, वहाँ जाके बैठ भी रहे सगीर जोखनपुरी जामे अजहर। तो वहाँ जिनके साथ जाके बैठ रहे हैं वो बदअकीदा नहीं है, वो रवाफिज नहीं है, वो देवबंदी नहीं है। कट्टर में कट्टर फतावा रज़िया के हिसाब से वो लोग वहाबी साबित होते हैं, कट्टर में कट्टर। अरे हजरत कहाँ जी रहे हो? वो सबको मुसलमान समझ के दाखिला देते हैं, एले हदीस को भी, देवबंद वालों को भी, नदवे वालों को भी, बरेली वालों को भी, सबको मुसलमान समझते हैं। वो फतावा हुसामुल हरमैन को बिल्कुल नहीं मानते, आज भी तस्दीक नहीं मिलेगी जामे अजहर वालों की फतावा हुसामुल हरमैन पे। तो आपको और क्या इमाम हरम के खिलाफ उनका कोई फतवा नहीं है, आज तक कोई फतवा नहीं है। वहाँ जाकर क्या कह रहे हैं? सभी जोखनपुरी क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर? ये बात आपने पकड़ की वहाँ तो मुनाजरा, यहाँ तो मुनाजरा करते हैं, वहाँ जाके उनके साथ खा रहे हैं पीना देवबंद वालों के साथ। वहाँ भी जाकर वो अहले सुन्नत का ही काम कर रहे हैं हजरत, अकायदे अहले सुन्नत का प्रचार कर रहे हैं वो। अच्छा जी, और ये तो आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात बता दी, ऊंचे दर्जे की। हाँ, वो कोई वहाँ भी देवबंदी राफजियों के साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं। अच्छा, वहाँ किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो खुद इमाम बनते होंगे, लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते होंगे हजरत। उनको लोग इमाम बनाएंगे वहाँ के लोग। जी, क्या बात करी, जब वो लोग अरे ये तो ऐसी बात करी कि सूरज मस्जिद से निकलता है तो कोई कहते नहीं आज सूरज मगरिब से निकल रहा है, तो कोई मानेगा ही नहीं कि मगरिब से कैसे सूरज निकल जाएगा। जब वो लोग उनको स्पीकर बतौर मुकर्रिर खड़ा कर कर उनसे बयान करवा रहे हैं तो क्या तजावुज है कि वो इमाम न बनाए उनको? क्या बात कह दी, ऐसी कोई सनद है कि उनकी इमामत हुई है वहाँ पर? इंस्टाग्राम खोलिए, सगीर अहमद जोखनपुरी का ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर सारी अपडेट नहीं, वो इमाम बने, जामे अजहर मिस्र के इमाम बने, ऐसे कोई सबूत है आपके पास? जामे अजहर मिस्र में मस्जिद है और वहाँ तो सब पहले खड़े होते हैं, तो इन्हें भी पहले खड़ा होना पड़ेगा। मस्जिद है नहीं, मस्जिद है, अगर ये इमाम बन भी गए तो इन्हें पहले खड़ा होना पड़ेगा। अंगूठा नहीं चूमते तो इन्हें कोई अंगूठा नहीं चूमना पड़ेगा। में मस्जिद है, हाँ बिल्कुल मस्जिद है जामे अजहर। वहाँ का इमाम कौन है? जामे अजहर का इमाम का भी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देखना पड़ेगा हजरत। आपको मालूम कुछ नहीं है लेकिन आप बोलेंगे सब। हाँ जी, मालूम कुछ नहीं है, बोलेंगे सब। ये सगीर जोखनपुरी के हाथ पर काई सगीर जोखनपुरी जब जामे अजहर मिस्र गए हैं तो पूरे 1 लाख आदमी उनके हाथ से मुरीद हो गए वहाँ पर, आलिम वगैरह और जो तालिबे 1 लाख कम बेश। शोबा अहले सुन्नत से जो वाबस्ता है हजरत, नहीं 1 लाख के करीब आलिम उनसे मुरीद हुए क्या अभी जो गए 1 लाख आलिम कम बेश? मुझे क्या पता इस बारे में। अरे हजरत का चेहरा देख के कितने लोग मुरीद नहीं हुए वहाँ? हजरत साहब बड़ा मुश्किल मसला है साहब, ये तो बड़ा मुश्किल मसला है हजरत, बड़ा मुश्किल मसला है। क्या करे इस बात जिसको चाहो वहाबी बना दो, जिसको चाहो सुन्नी बना दो, जामे अजहर वालों को आप सुन्नी बना दो, मतलब की खातिर के शायर नजर पड़ जाए तो सुन्नी है, और अगर देवबंद वाले पढ़ते तो वहाबी हैं। अभी हमारे लोग पढ़ रहे हैं बरेली वाले, तो सुन्नी बनाओ, नहीं तो पब्लिक खा जाएगी हमें कि क्यों वहाँ पढ़ने गए, हमें तो मना करते हो देवबंदी से पढ़ो मत, तुम जाके जामे अजहर में पढ़ते हो, इसलिए मजबूरन सुन्नी बना दो कि सुन्नी है कि यहाँ से कौन वीजा लेके जाकर देखने के लिए, चेक करने के लिए कौन आम आदमी जाएगा वहाँ पर चेक करने? आम आदमी को जाने की जरूरत नहीं हजरत, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन वो उनकी दाढ़ियाँ भी नहीं होती, वो पेंट बुशर्ट पहनते हैं, दाढ़ियाँ भी नहीं होती हैं, पेंट बुशर्ट पहनते हैं, और वो उनके ताल्लुक काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम, सबसे उनके ताल्लुक है वहाँ के लोगों के, और वो सब नमाज पढ़ते हैं वहाँ के, जमात से नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हजरत, एक बात बताइए, आपको बड़ा वावेला हो रहा है जामे अजहर मिस्र में अगर कोई पढ़ने चली जाए तो आपका अजहरी मियाँ के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये आपने बहुत ऊंचे, ये सब बातें निकलेंगी जब हशमती एकदम अलग हो जाएंगे ना, तो ये सब। तो हजरत इस बात को कोई निकालना नहीं चाह रहा सिवाय आपके, कोई नहीं निकाल रहा सिवाय आपके, अकेला मैं। आपकी जो सुलह कुल्लियत है ना कि वहाबी देवबंदियों के साथ बैठकर खाओ, सारे काफिर नहीं होते, इमाम काबा के पीछे, इमाम हरम के पीछे नमाज हो जाएगी। भी तो वहाँ पढ़ना जामे अजहर में, फिर उन्हें सगीर जोखनपुरी से निकलवाओ, खेचे के उनके जामे अजहर की बात छोड़िए आप,
आप आइए नहीं, मस्जिद एक फोन हरम कर के दो ऊपर। कारी सकी जोखनपुरी साहब को कि हजरत आप गए हो तो फतावा हुसाम अल-हरमैन पे तस्दीक करा के आप मुकम्मल लेके आना, कम से कम 50 आलिमों की तस्दीक हो जामिया अज़हर मिस्र के, और इसकी पूरी सबूत हो, उनके मोबाइल नंबर भी हो, ताकि लोग ये न समझे कि 420 करी इंडिया के आलिमों ने दस्तखत कर दिए और बता दिया कि मिस्र के आलिमों ने तस्दीक करी है। इंडिया के आलिम 420 में नहीं है हजरत, नहीं, ठीक है। बहुत से 420 करने के खुद ही दस्तखत कर दे कि जामिया अज़हर मिस्र के फला आलिम फला आलिम फला मुफ्ती फला मुफ्ती। मेहमान दावत दी गई है जामिया मिस्र अजहर से, ठीक है। किसको? वो गए हैं मेहमान के तौर पर सगीर अहमद जोखनपुरी। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। जी हाँ, उनको वहाँ पर इज्जत और इकराम के साथ नवाजा जा रहा है हजरत। वो वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि उनको दूल्हा बनाए, पीलीभीत में बुला के दूल्हा बनाए। सनाबिल साहब, शमाइल साहब, इदरीस साहब, उनको आके दूल्हा बनाए। नहीं, आप मानेंगे नहीं, ये आपका हसद और आपकी जलन है हसमतियों से, बरेलवियों से, रज़वियों से। एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करो दुरूद। ये किनका कलाम पढ़ा आपने? अब मालूम है ताजुल उलमा ने क्या कहा था उलमाए बदाइन के बारे में, मालूम? ये किनका कलाम पढ़ा आपने? ये हजरत फाजिल बरेलवी का ही है। तो फाजिल बरेलवी का कलाम आप पढ़ सकते हैं, फाजिल बरेलवी की नाते आप पढ़ सकते हैं, तो फाजिल बरेलवी के फतावा को मानने में आपको क्या दिक्कत है? ये आपने बहुत, तो फतावा में ये लिखा है कि ताज़िया जायज है कि नहीं? जी, फतावा में तो लिखा है, आला हजरत ने जो ताज़िया की रुख्सत है, जहाँ तक ताज़िया का जवाज है, वो आला हजरत ने सूरत लिखी है। ये फिर कलीम हनफी साहब मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? फिर ये कलीम हनफी साहब, सगीर जोखनपुरी साहब, ये मुखालिफ कौन? सगीर जोखनपुरी में मुखालिफ है। किसके सगीर जोखनपुरी के मुखालिफ है? आप बयान दिलवा दो, जो हशमती कह रहे हैं कि ये जायज है, तो वो भी तायद कर दें, बस हम मान लेते। किनकी तायद कर दें? तायद की जरूरत किसे है हजरत? सरकार आला हजरत ने लिख दिया, जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है ना माने। अब जो ना माने, तो जो ना माने हजरत वो अपना पल्ला देखे। तो फिर वो मसले के आलत का नहीं है, जो नहीं माने तो मसले के आलत बता रही है, जो ना माने तो मसले के आलत वाला नहीं है, गद्दार हुआ। किसने कहा आपको वो आला हजरत को नहीं मान रहे? नहीं, जो आप कह रहे हो कि आलत ने लिखा है ताज़िया बनाया जाएगा, अब जो ना माने तो गद्दार है, मसले के आलत हुआ। अरे हजरत, बातों को उलझाइए मत। मैं कह रहा हूँ आला हजरत ने लिखा कि मुरव्वजा ताज़ियादारी, आप खुद कह रहे हो कि जायज है, आलत ने लिखा, जो ना माने इनकार करेगा गलत, जो ना माने इनकार करेगा नहीं लिखा तो ताज़ियादारी हराम, मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम। सरकार आला हजरत ने लिखा मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम। हलाल तरीके से जिस तरीके से ताज़ियादारी हो सकती है, आला हजरत ने उसकी सूरत लिखी कि नक्शे इमाम आली मकाम बनाकर अपने घर में। कलीम हनफी साहब ने जो अभी रद्द किया है कि कहीं जायज नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है, उन्होंने क्यों रद्द किया? फतावा रद्दिया दिखा के मुरव्वजा ताज़ियादारी का रद्द किया उन्होंने। तो फिर ये किस पे अड़े हुए हैं? ये सनाबिल लगा, शुमाइल लगा, वो गहरे मुरव्वजा पर अड़े हुए हैं कि गहरे मुरव्वजा ताज़ियादारी। तो उसी का तो रद्द कर रहे थे 3 अगस्त को, और काय का रद्द कर रहे? किसने रद्द किया? आप कोई साबित कर दे कि खानका हशमतिया वाले मुरव्वजा ताज़िया, तो वो उन्होंने तो चैलेंज इसी बात को दिया था, ताज़िया के सामने ढोल बजा रहे हैं। वो इसी बात को चैलेंज दिया था कि आओ साबित करो, जिसको तुम जायज बता रहे हो, जिस ताज़िये को, उसी को साबित करो। उसी का तो चैलेंज था 3 अगस्त को। वो साबित सरकार आला हजरत ने कर दिया। उसके ही ऐन मुताबिक खानका हशमतिया ताज़ियादारी कर रही है। जी ठीक है, आला हजरत ने कहा कि रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा बनाकर अपने मकान में रखे, उसे इज्जत व इकराम दे, उसका अदब रखे, ठीक है, कहीं घुमाए ना, उसके आगे ढोल ताशा ना बजाए, मुरव्वजा काम उसमें ना करे, तो वो ताज़ियादारी जायज है। बड़ा मुश्किल मसले हैं भैया इनके नजदीक। बड़ा मुश्किल मसला नहीं है हजरत, जुमा भी नहीं बना रहे हैं लोगों। तुम लोग अगर हज करने जाओ तो जुमा भी न पढ़ो, ये तो इनका मसला है कि हज करने जाओ तो 7 जुमे छोड़ो। इंडिया में तो 1 जुमा मत छोड़ो, वो वहाँ हज करने जैसे मौके पे जाओ तो 7 जुमे छोड़ो, यानी 7 जुमे आएंगे 40 दिन में। ये तो ये कहते हैं कि नमाज अकीदों के पीछे नमाज नहीं हो सकती। इस सूरत में जहाँ कोई इमाम अहले सुन्नत व जमात से नहीं, सहीउल अकीदा नहीं, सब कट्टर सुन्नी है साहब, इमाम पूरे कट्टर सुन्नी है। मक्का जैसे आप जामिया अज़हर वालों का भी सुन्नी बना रहा हूँ ना, मतलब की वजह से कि हमारे आदमी पढ़ रहे हैं तो मतलब सुन्नी बना दो। हजरत मैंने कोई नहीं बनाया, और मक्का शरीफ मदीना शरीफ का भी मतलब नहीं है तो वहाँ भी बना रहा हूँ, वही तो मतलब हुआ कि सारा जामिया मतलब की खातिर जिसे चाहो सुन्नी बना दो, जिसे चाहो वहाँ भी बना दो। अभी मक्का शरीफ मदीना शरीफ के आलिम का मतलब नहीं है। मैंने नहीं कहा जामिया अज़हर में सारी सुन्नी है। बड़ा मुश्किल मसला है हजरत। आप जामिया अज़हर के आलिम कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब लखनऊ में नदवा में आए थे। लखनऊ नदवा, जो कारी अब्दुल बासित है ना, सबसे बड़े कारी थे दुनिया के, वो लखनऊ में आए थे नदवा में।
आप थे? कहा को बरेली में क्यों नहीं आया काजी अब्दुल बासित साहब आज तक? आप सुने आपने, ठीक है, आपने उनकी किरत समाप्त की? अभी लखनऊ जाके पूछ लें, फोन कर लें। आपने उनकी किरत समाप्त की हजरत? दुनिया के सबसे बड़े काजी थे साहब। आपने उनकी किरत समाप्त करी लखनऊ जाके? हाँ, मैंने सुना ही ना। किरत समाप्त किया आपने लखनऊ जाके, नदवा में जाके? वो सब देवबंदियों में ही जाते थे ज्यादातर किरत पढ़ने। आपने सुनी उनकी किरत जाके? ज्यादातर देवबंद वालों में ही गए, उनको देवबंद वालों ने सुनी बुलाया। उनकी किरत जाके? सुनी आपने उनकी किरत जाके देवबंद में सुनी? हजरत साहब बड़े मसले हैं, बड़े मसले हैं हजरत। आपने सुनी देवबंद में जाके उनकी किरत? हजरत इलियास काजी को भी आप सुन्नी बना दो। इलियास कादरी सुन्नी है, उसके कुछ अकायद खराब हैं, ठीक है हजरत। अकायद खराब, काफिर नहीं कहा जा सकता इस बिना पर कि वो उसके जो भी हैं वो कुफ्र की हद तक नहीं पहुंचते, वरना उलमा उस पर कुफ्र का फतवा देते हैं। और कुछ उलमा ने उस पर कुफ्र का फतवा दे चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से उलमा दे चुके हैं कुफ्र का? हाँ, उलमाए हिंद उन पर कुफ्र का फतवा दे चुके हैं। उसकी एक इबारत के ऊपर। कौन सी इबारत? उसने उसमें फैजाने, उसकी किताब है ना, क्या है, फैजाने मदीना, फैजाने सुन्नत। हाँ, उसमें ईद उल फित्र के मसले पर लिख दिया था कि हम ईद क्यों मनाएं। अच्छा, जहाँ कोई मुल्क जालिम से, किसी जालिम के चुंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, चुंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है। उस इबारत पर जामे नहीं अमरादाबाद से फतवा लगा कुफ्र का। जी, कुफ्र का फतवा लग चुका है उस पर, लेकिन कोई मान नहीं रहा। क्या चक्कर है? उधर हुसैनी में नागपुर वालों ने भी दे दिया था, उनका भी फतवा लोग नहीं मान रहे। उधर आपके हजरत मुशाहिद साहब ने भी कहा था कि इलियास पादरी जी, वो भी लोग नहीं मान रहे जी। और देखिए, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। अरे तो हजरात जितने हैं वो मान रहे हैं कि दावत इस्लामी सुन्नियत की जमात नहीं है ना। हाँ, अजहरी मियां साहब ने कह दिया कि जमात का मसला क्या आला हजरत से ताल्लुक नहीं है। खानकाह हसमतिया 25-30 साल से इस जमात करत करते आ रही है। इनके पैरोकार जो भी हैं खानकाह हसमतिया के, अजहरी मियां साहब के, उनके पैरोकार नहीं मानते। मैंने इतना कहा था कि ये मसले की हालत के मुबल्लिग नहीं है, तो अब्दुल मुस्तफा से पूछा जाए कि ये मसले की हालत के मुबल्लिग नहीं तो मसले की हालत को तू क्या मानता है? ये क्या किस उसकी तारीफ करके बता, तू क्या मानता है जो मसले की इतनी से कह के दामन झाड़ रहा है कि वो खाली इतना कहा कि मसले की हालत की मुबल्लिग नहीं है, तो इसका मतलब तू कट्टर सुन्नी मान रहा है इस्लामी वालों को। अगर ये कहना है, ये मतलब है कि मसले की हालत दीन इस्लाम का दूसरा नाम है, तो फिर दीन इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है दाऊद इस्लामी वाले। साहब अजहरी मियां का कह दिया है कि नहीं साहब? अजहरी मियां के कहने का ये भी झुलमुल यकीन, ये भी साहब सुलह कुल्ली हो गए। अब्दुल मुस्तफा रदौलवी भी सुलह कुल्ली हो गए, बहुत सारे सुलह कुल्ली हो चुके हैं। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अलकट्टरों में से होना चाहिए, जैसे होना चाहिए बस। जी, मैं हूँ अलकट्टरून सुन्नी में से हूँ मैं जी हजरत साहब। इसने इलियास काजी ने तो लिखा है कि अल्लाह के सूख खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, सफ़ा 31 फैज़ान सुन्नत में। हाँ, वो कहा है उसने, वो सफ़ा 27 में लिखा है कि इसके कब्रिस्तान में जो इज्तिमा हुआ था लांडी के कब्रिस्तान में, जितने लोग गए सबकी बख्शिश, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस। ऐसा तो है नहीं कि इसके इज्तिमा में टोटल सुन्नी थे, जितने भी गए देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया सबकी बख्शिश, और जिसको अल्लाह के सूख का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं। सफ़ा 27 में। और हल्फिया बयान था। हल्फिया बयान को इसने झूठा क्यों माना? हल्फिया बयान का मतलब ये होता है जो बयान अल्लाह की कसम खा कर दिए थे। फिर इसे कटवाया क्यों? नई में से क्यों कटवाया? फिर से आज तक तौबा भी नहीं की, न कलमा पढ़ा। हजरत साहब बड़े मसले, तौबा नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा, क्या काफिर की हद तक पहुंचा था? बड़े मसले हैं कुफ्र की हद। अरे हजरत, आप तो सब पर तौबा के हुक्म इस तरीके से लगाते जैसे सामने वाला काफिर हो गया। नहीं, वो तो देवबंद वाले, देवबंद नहीं था, वो तो देवबंद वाले मुसलमान नहीं है। आप न नदवा वाले हैं, न अरब वाले हैं, न जामे वाले मुसलमान हैं, न देवबंद वाले मुसलमान हैं, मुसलमान। न आपके नजदीक देवबंद वाले मुसलमान हैं, न सहारनपुर वाले, न भोपाल वाले, न उज्जैन वाले, न जो है कि सागर वाले, न जो है कि अरब वाले, न मक्का शरीफ वाले, न मदीना शरीफ वाले, न जो कतर वाले, न दमाम वाले, न जो है कि इंडोनेशिया वाले, न मलेशिया वाले, न अफगानिस्तान वाले, न तुर्किस्तान वाले। में खराबी वो मुसलमान बस वही मुसलमान है जो रात दिन मसले के आला हज़रत का नारा लगाए, मसले के आला हज़रत की गुन गाए, जबकि जामे अज़हर वाले मसले के आला हज़रत का नारा लगाते नहीं है, उनको आप सुन्नी बना रहे हो। जबकि वो साहब हरमैन को मानते नहीं, उनको आप कट्टर सुन्नी बना रहे हो। वहाँ पर यागो सलमदद वो कहते नहीं, उनको आप सुन्नी बना रहे हो। वो हाजिर नाजिर वाला अकीदा नहीं रखते, उनको आप सुन्नी बना रहे हो जामे अज़हर वालों को। वो इमाम हरम को गलत मानते नहीं, उनको आप सुन्नी बना रहे हो। वो देवबंद वालों को गलत मानते हैं, उनको आप सुन्नी बना रहे हो। वो नदवे वालों से ताल्लुक रखते हैं जामे अज़हर वाले, उनको आप सुन्नी बना रहे हो। ये इसलिए कि हमारे आदमी अभी वहाँ पढ़ रहे हैं तो सुन्नी बनाओ, जिस दिन नहीं पढ़ेंगे तो उनको अपन वहां भी बना देंगे।
जैसे फतावा हुसामुल हरमैन लाए थे तो सुन्नी थे, और जैसी फतावा हुसामुल हरमैन आई तो वहां भी हो गए। हजरत साहब अच्छा, बहुत अरे गहरी हजरत साहब बहुत गहरी बात है। आप मुझे एक बात बताइए। हजरत साहब 100 साल अरे से हजरत नमाज नहीं हो रही, साहब, आप आपके मुझे एक नजदीक बात बताइए, आप मुझे एक बात 100 बताइए। सरकार आला साल हजरत, से मक्का सरकार शरीफ आला मदीने शरीफ में हजरत, नमाज सरकार मौजूद। आला हजरत हज पर कब गए थे? अरे साहब बड़ी मुश्किल। कब उन्होंने हुसामुल हरमैन लाई? अरे बताएं वो तो आप क्या मालूम बताएं। कब थी। और उस वक्त हुसामुल में हरमैन को उलमाए मानते हरम, तो हो, उलमाए उसमें मक्का हजरत मदीना अल्लामा शाह ज़ैनी सुन्नी वाला थे मक्की या रहमतुल्लाह अलैह का वहाबी फतवा थे? है, और हाँ हजरत जी शाह है। ज़ैनी वाला मक्की रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते और आप काफिर मानते हो। अरे हजरत, इन एक फतवा उनका मान रहे हो कि हुसामुल हरमैन में उनका फतवा है, दूसरा क्यों नहीं मान रहे? इख्तिलाफी दूसरा मसाइल तो खुद आला हजरत ने नहीं माना, हजरत शाह ज़ैनी वाला मक्की का, हजरत शाह ज़ैनी वाला मक्की हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं, तो आला हजरत ने क्यों मुसलमान नहीं माना? एक फतवा लाके क्यों दिखा दिया फतवा हुसामुल हरमैन में? हजरत शाह ज़ैनी वाला ने इनको ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया देवबंद वालों कर पर, रहे हैं ना, ये इख्तिलाफी मसाइल है, इसमें इजमा देखा जाता है। और उन्होंने कितने लोगों अगर ने क्या मगर कहा है। के फतवा लगाया है कि अगर किसी का अगर ऐसा मगर अकीदा कह के है, फतवा नहीं लगाया है, तौहीन अगर का किसी का अकीदा है तब काफिर होगा। ये अगर मगर के शर्तिया है उसमें, आप पढ़ो फतावा हुसामुल हरमैन। अगर मतलब ये है कि किसी का अकीदा तौहीन की नीयत से है तब काफिर होगा, ऐसे काफिर नहीं हो जाएगा। तो वो उन खुद चार इनकार करें। मौलवियों हजरत को थाली आला साहब हजरत ने ने काफिर कहा करार दिया या कि नहीं मेरा दिया? ये चार कोई इरादा ही मौलवियों नहीं को है, न काफिर मेरा करार ऐसा दिया कोई क्या नियत नहीं दिया? है। चार और खुद मौलवियों को ताली साहब काफिर ने करार दिया इकरार या किया नहीं दिया? है कि जिस नियत से ये काफिर कह रहे हैं, ऐसे शख्स को मैं भी काफिर मानता हूँ। समझ गए? दस्तूर बनान पड़ी आप। आला हजरत ने 4 मौलवियों को कुफ्र का फतवा लगाया या नहीं लगाया? चलो 4 को काफिर मान लो, लेकिन 4 करोड़ को क्यों मान लो? 4 करोड़ अगर उनकी इक्तदा करें, उन्हें माने, तो वो भी काफिर हैं। अच्छा चलो इक्तदा नहीं कर रहे, उन्हें मालूम नहीं है, जब तो मुसलमान है। अगर उन्हें नहीं मालूम, उनके अकायद दुरुस्त है, मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये मैंने कहा आपने भी जिनके मुसलमान मान अकायद, लिया। मैंने कहा जिनके अकायद, हशमती शख्स ने मुसलमान मान लिया देवबंद वालों को, ये कह करके अगर उन्हें नहीं मालूम तो मुसलमान है, नहीं मालूम तो वालों को मुसलमान नहीं कहा, नहीं मालूम तो मुसलमान। देवबंद वालों को मुसलमान नहीं कहा मैंने, जिनके अकायद दुरुस्त हैं और अक्सर देवबंदी मदरसे से जो नहीं, ये तो आपने कहा ना, जो उन इबारतों को नहीं जानता है तो वो मुसलमान है। उसके अकायद दुरुस्त नहीं, उसके अकायद दुरुस्त नहीं, जो देवबंद से पढ़ा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को आप क्या मानते हो, मोमिन या काफिर? उनके ऊपर भी अदरीना का फतवा है कुफ्र का, और मुहद्दिस कबीर का भी फतवा है। उनसे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। लो दामन क्यों झाड़ रहा हूँ? दामन कहाँ झाड़ा मैंने हजरत? वो मेरे लिए कोई मिसाल है, मेरे लिए दलील है? अल्लामा ताहिरुल काजी पर भी कुफ्र का फतवा है, उन्हें तो आप काफिर मानते हो? मेरी दलील उस पर नहीं है। नहीं, अल्लामा ताहिरुल काजी को तो काफिर मानते हो ना? मेरी दलील उस पर नहीं है। मेरे मानने न मानने से कुछ, तो अल्लामा ताहिरुल काजी को सुन्नी तो मानते हो? सुन्नी तो है। मेरे मानने न मानने से कोई शख्स तब्दील नहीं हो जाएगा। चलो अच्छा है, कम से कम शक तो कर रहा हूँ ताहिरुल काजी के बारे में कि मैं काय को काफिर कहूँ। मैंने शक नहीं किया उस पर, मुझे उसका मसला नहीं पता, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। ये बात अच्छी अच्छा हुआ, जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जानते हुए नहीं अनजान बन रहा हूँ हजरत। सोचा कि अभी मैंने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी के बारे में पूछा तो अनजान बन गया, अब ताहिरुल काजी के बारे में कह दूंगा तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो शख्स ईमान के क्राइटेरिया पर पूरा आएगा वो मुसलमान, और जो इस क्राइटेरिया पर पूरा ना उतरे वो मुसलमान नहीं। एक बात बताओ, पूरे बम्बई में कोई मदरसे से जो पढ़ा वो मुसलमान नहीं। एक बात बताओ हजरत साहब, उलमाए देवबंद मुसलमान नहीं। नहीं चलो मुसलमान नहीं, आपने माना नहीं, आपने मान लिया कि मुसलमान नहीं है, आपने मान लिया ना? किनको? देवबंद वालों को कि वो मुसलमान नहीं? मान लिया मैंने। मान लिया मैंने। अब जो उन देवबंद वालों को मुसलमान माने वो क्या हुआ? वो भी मुसलमान नहीं। अच्छा चलो, तो फिर तो यार जामनगर वाले मुसलमान नहीं? अरे हजरत क्यों, बहुत तो मुसलमान मानते हैं देवबंद वालों को, मुसलमान मानते हैं। मत करिए मुफ्ती शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पूछ लो, जामनगर से गूगल से निकाल दो, देखो कितना वो अदब करते हुए मिलेंगे जामनगर वाले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। बैरुल उलूम है, इल्म का समंदर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, पूरी दुनिया के अंदर इस बार उनका मानदान है पूरी दुनिया में। और टर्की में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में पूछो, मुफ्ती इलियास घुम्मन वहीं मौजूद हैं। टर्की वालों का आप सुन्नी मानते हो? टर्की वालों का तो ताल्लुक देवबंद से है। टर्की वालों का ताल्लुक तो देवबंद से है मियां। आपको है सुला कुल्ली, मेरे लिए कट्टर से सुन्नी हूँ।
कोई खान का कोई खान वाला मेरे लिए दलील कट्टरा नहीं। कट्टरू अगर कट्टर किसी ने कट्टरना अगर किसी कट्टर ने तो कट्टर से कट्टर अगर कोई खान का देवबंद वालों को अगर कोई खान का अगर कोई खान का देवबंद वालों को मुस्लिम भी कहे तो मैं नहीं मानूंगा। सरकार आला हजरत ने फतवा दे दिया, मैंने मान लिया। आला हजरत से आगे कोई नहीं गुजर सकता, मैंने मान लिया। सरकार आला हजरत का फतवा जारी है, जिसे मानना है माने। आप जैसे सुलह कुल्ली कहीं आए कहीं गए, मसला के आला हजरत टस से मस ना हो सका। हजरत एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, चाहे उलमाए हरम को मुसलमान कहिए, चाहे सारे देवबंदियों को। एक मौलवी साहब तो कह रहे हैं खच्चर कह रहे हैं, उसे कुत्ता बता रहे हैं हशमती, मुफ्ती कलीम मंसी से। चाहे एक हशमती उन्हें कुत्ता बता रहा है, एक आप है कि उन्हें अच्छा सुन्नी मान रहे हो। आप मुफ्ती कलीम मंसी साहब को सुन्नी मान रहे हो, अच्छा खासा सुन्नी सब मान रहे हैं उसे, किसी ने उसे बदअकीदा नहीं कहा। सुन्नी तो मान रहे हो ना। खिलाफ की वजह से उसे गालियां दे, चाहे खच्चर कहें चाहे कुछ कहें, उसे किसी ने बदअकीदा नहीं कहा है, ना वहाबी कहा है, ना देवबंदी कहा है, ना कि इसे उसके ईमान पर किसी ने शक किया है। ये तो मानते हो कि वो हक पर हैं, ये तो मानते हो। अरे हजरत आपसे इख्तिलाफ पर क्यों जा रहे हैं आप? मैंने कह दिया वो सुन्नी है, मानते हो मुफ्ती कलीम हनफी साहब हक पर हैं? नहीं, मैं नहीं मानता मुफ्ती कलीम साहब हक पर हैं ताजियादारी के मसले को लेकर। तो फिर आप वही बात कह रहे हो, तो वो गद्दार आला हज़रत हो गए। अगर आला हज़रत के मसले को नहीं माना, आला हज़रत ने ताजिया को जायज लिखा, वो नहीं माना तो गद्दार आला हज़रत हुए। आला हजरत ने ताजियादारी को जायज नहीं लिखा, ठीक है। मुफ्ती कलीम हनफी साहब नहीं माने तो गद्दार आला हज़रत हुए। अरे हजरत मुफ्ती कलीम हनफी साहब का क्या मसला है मैं बताऊं आपको। हाँ, मुफ्ती कलीम साहब समझ रहे कि खानकाह हशमतिया वाले मुरव्वजा ताजियादारी को जायज कह रहे हैं। हाँ। और खानकाह हशमतिया ऐसा कर नहीं रही है। गैर मुरव्वजा ताजियादारी से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। खानकाह हशमतिया का 3 गाड़ियों का चैलेंज क्यों रखा? किसका 3? जब उन्हें ये मालूम था कि ये मुरव्वजा ताजियादारी को जायज कह रहे हैं तो फिर चैलेंज रखने की जरूरत ही नहीं थी। चैलेंज रखा उसी बात पर। चैलेंज तो उन्होंने इस बात पे रखा कि जिस ताजियादारी को ये जायज कह रहा है उसी को नाजायज बता रहा है फतवा रज़िया से। अरे हजरत पहले उसका लेटर पैड उसूलों पर अरे वो जिस ताजियादारी को जायज पीलीभीत ये बता रहे हैं सनाबिल अज़ाब शुमाइल साहब, ये सलासा हजरात, तो उसी को नाजायज बताने के तो उन्होंने प्रोग्राम रखा था 3 अगस्त को। उसको नाजायज बता पाए वो? और ये भी कहा था कि पीलीभीत में जाऊंगा, मैं पीलीभीत में जाऊंगा, अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते बम्बई तो मैं पीलीभीत में आने को तैयार हूँ। उसको नाजायज बता पाए? जरताब साहब सुलकुल्ली हो चुके, बुरहान रज़ा साहब सुलकुल्ली हो चुके, मुज़ब्ज़ब हो चुके, तो पक्के मुज़ब्ज़ब हो गए। तो जरताब ये इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता नहीं है जरताब रज़ा, बुरहान रज़ा, सनाबिल रज़ा, शुमाइल रज़ा, और मोहरान रज़ा, तोहरान रज़ा, फोरहान रज़ा, जाने कितने रज़ा, 78 रज़ा, 69 रज़ा, 77 रज़ा। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने में इनकी जान निकलती है और कहते हैं ताजिया बनाओ, ताजिया बनाओ। एक तरफ दम भरते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत का और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने में जैसे इनको मौत आ रही है, इनकी नानी मर रही हो। जबकि बुखारी शरीफ में इमाम हुसैन ने लिखा, वो इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, बड़े पीर साहब ने तालीम में लिखा, शाह अब्दुल अजीज साहब ने फतवा रज़िया में अलैहिस्सलाम लिखा, शाह शेख अब्दुल हक साहब की किताबों में देखो, हजरत अल्लामा पीर करम शाह ज़रीर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हसन को अलैहिस्सलाम लिखा, हजरत अल्लामा ताहिर काजी साहब अलैहिस्सलाम के कायल हैं। दुनिया के कितने मुल्कों के लोग अलैहिस्सलाम के कायल हैं, बड़े बड़े वली कायल है, इमाम कायल है, कुतुब कायल है, अब्दाल कायल है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कायल है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन हैं, जैसे बड़े बड़े अकाबिर वली कायल हैं। लेकिन ये सनाबिल अल्लाह कायल नहीं है कि नहीं कहेंगे इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, फिर काय को ताजियादारी में पड़े हुए हो? किसने कहा कि थोड़ा ताजियादारी, जब तुम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते तो अपने घर में बैठो, काय को मोहब्बत जताओ? मालूम ना हो किसी चीज अगर के तुम बारे में इमाम हुसैन की मोहब्बत से दम भरते हो तो बरेली वाले से मत डरो, कहो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, कहो धमकी की चोट पे। और ये लफ्ज़ अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम हुसैन की मोहब्बत का मकबूलियत नहीं है, उसकी सनद नहीं है। इमाम बुखारी ने क्यों लिखा? क्या उनसे बड़े आलिम है पीलीभीत वाले? पीलीभीत वाले बुखारी शरीफ क्यों पढ़ते हैं? बुखारी शरीफ पढ़ना बंद कर दें? कहोगे कि वो मुसलमान है, फिर बुखारी शरीफ पढ़ना बंद कर देंगे? इमाम बुखारी ने क्यों लिख दिया इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम? हम नहीं पढ़ेंगे बुखारी शरीफ, हम नहीं पढ़ेंगे मुस्लिम शरीफ, हम नहीं पढ़ेंगे तिरमिज़ी शरीफ। क्यों लिखा है इन्होंने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम? उलमा ने इज्मा किया है कि अलैहिस्सलाम को रज़ियल्लाहु कहने की दलीलें मिलती हैं, अलैहिस्सलाम कहने की दलीलें नहीं मिलती, अंधे हो जाते हैं लोग, आंखें फूट जाती हैं लोगों की। बिना वजह फर्जी मोहब्बतें जताते हैं इमाम हुसैन की। अरे अलैहिस्सलाम कहने में मौत आ रही है इन लोगों को, अलैहिस्सलाम कहने में इनको बुखारी शरीफ नहीं दिख रही पीलीभीत वालों को, कि बरेली वालों को हम दिखा के देख ये बुखारी शरीफ में लिखा, देख ये गुनियत तालिबीन में लिखा, देख शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा, देख शेख अब्दुल हक साहब ने लिखा, देख शाह अनवारुल्लाह फारूकी ने लिखा,
जय शाह अब्दुल अजीज वली अल्लाह साहब ने, बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम ने। हो गई आपकी तकरीर, हो गई। बताते मोहब्बत इमाम हुसैन, हो गई आपकी तकरीर। सुलह कुल्ली हैंगे, मुजब्जब हैंगे, कोई कट्टर सुन्नी थोड़ी है। कट्टर सुन्नी होते तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते, सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम कहते। अरे सुलह कुल्ली मुजब्जब हैंगे, वहाँ भी हैं, वहाँ भी लोग नहीं कहते अलैहिस्सलाम। देवबंद वाले तो कह भी देते अलैहिस्सलाम। देवबंद वाले से किसने में देवबंद वालों से अलैहिस्सलाम कहवाया नहीं है? उलमाए देवबंद हो या अवाम के आदमी उलमाए देवबंद में से, उनमें से अभी तकरीर में अभी बात करूंगा तो अभी कितने उलमाए देवबंद कह देंगे अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने कहलवाया भी है देवबंद वालों, ये वहाँ भी नहीं कहते, वहाँ भी नहीं कहते, ये पीलीभीत वाले इमाम हुसैन की सनद नहीं, लफ्ज़ अलैहिस्सलाम मोहब्बत इमाम हुसैन की सनद नहीं, ये तो राफ़ज़ी भी कहते हैं। ताज़िया की सनद है, ताज़िया क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत की सनद है? मोहब्बत की सनद नहीं है, पर इजहार मोहब्बत का तरीका है। तो बस तो ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहना भी इजहार मोहब्बत का एक वो है। मोहब्बत नहीं करते, बस तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना भी इजहार मोहब्बत का एक वो है, जरिया है। मैं कह रहा हूँ जो कहे उनसे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक बार कह दो, एक बार आप कह दो, एक बार आप कह दो, एक बार आप कह दो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे अरे हजरत कहने में कोई कोताही नहीं है, बस वजह इतनी है उलमाए अहले सुन्नत ने आपकी तरफ सुन्नी होने चाहिए, कट्टर सुन्नी आप हो, कट्टर सुन्नी। आप कुतुब हो जाओगे बम्बई के इंशाल्लाह, सुन्नी हूँ मैं, आप बम्बई के कुतुब बन जाओगे इंशाल्लाह, आप बम्बई के कुतुब बन जाओगे। बात को समझने की कोशिश करिए, आपका कल्ब रोशन हो जाएगा इंशाल्लाह, इसलिए कि आपने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दिया। और अब आप ये मानोगे कि बेशक काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, मुशरिक भी नहीं हो सकता। अगर देवबंदी बरेली वालों को मुशरिक बताए तो आप इनके अंदर कुरान के हाफिज बता दो, अगर बरेलवी देवबंद वालों को काफिर बताए तो आप उनके अंदर कुरान के हाफिज बता दो। काफिर के सीने में कुरान महफूज नहीं होगा। कुफ्र ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते, आग पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में लाखों हाजी हैं, हजारों हाजी हैं, उनको 10 सूरतें कुरान की याद नहीं है मुसलमानों को, तो कुरान का हाफिज काफिर कैसे हो जाएगा? ये ईमान वाले के सीने में ही महफूज होता है। बस ये आखिरी दलील है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे। अजान का टाइम हो गया, अरे भाग का रहे हो, अरे भाग का रहे हो हजरत, सुनिए मेरी बात। आपने दलील किस बात पर दी कि जिसके सीने में कुरान शरीफ का हिफ्ज हो वो काफिर नहीं हो सकता? हाँ। जी ठीक है, तो क्या कहेंगे उस जमाने के हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के खारजियों को जो कुरान पढ़कर, हजरत अली अलैहिस्सलाम के जमाने के खारजियों को जो कुरान पढ़कर हजरत अली पर फतवा लगाते थे, क्या उनके दिल में कुरान नहीं? पूरा कुरान याद था क्या उन खारजियों को? पूरा कुरान याद था कि थोड़ी बहुत सूरतें याद थी? जैसे सदरुल फाजिल के जमाने में एक शख्स ने दावत दिया था कि मैं 15 पारे का हाफिज हूँ। सदरुल फाजिल ने 15 पारे सुने थोड़ी थे, 1500 गलतियां आती उसकी 15 पारे। अच्छा ठीक है, तो हाफिज शाह जमाल रामपुरी के जमाने में जो पंडित था पहले ईमान लाया, बाद में वो हाफिज कुरान हुआ है, हजरत हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह जमाने में। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जिसके सीने में कुरान महफूज है वो काफिर नहीं हो सकता? हाँ, वो ईमान वाला ही होगा, आपको मालूम? अच्छा, किसने कह दिया आपको? ये कौन सी दलील, आप इस्तदलाल किस बात पर कह रहे हैं? ईमान की कौन सी निशानी है? मेरा चैलेंज देता है, ऑल वर्ल्ड चैलेंज देता है 2 लाख रुपए का। दिखाने की बात मत करिए, आप मुझे नंबर देता हूँ मैं 88 152 53 598 88 152 53 598। आपका नंबर है, नंबर को ले जाकर, इस रिकॉर्डिंग को ले जाकर आप पुलिस में, प्रशासन में जाकर, पुलिस थाने में जाकर ये नंबर दर्ज कराकर और ये रिकॉर्डिंग बताकर आप 2 लाख रुपए ले सकते हैं। गुस्ताखी करे और ऑल वर्ल्ड में कोई काफिर, मुश्रिक, यहूदी, ईसाई, कादियानी, गाली दर्जे का शिया का कुरान का हाफिज, पूरे कुरान का हाफिज नहीं, ऑल वर्ल्ड में सिर्फ 10 पारे का हाफिज ले आओ और 2 लाख रुपए नंबर दे दिया है। पुलिस स्टेशन पे मेरी रिकॉर्डिंग सुना के 2 लाख रुपए ले जाना। 10 पारे में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे सुनाने में। 10 पारे भी अगर हाफिज मिल जाए, को मुसलमान मानते हो? 10 पारे का हाफिज भी अगर काफिर, मुश्रिक, यहूदी, ईसाई, कादियानी, गाली दर्जे का शिया, ऑल वर्ल्ड में से कोई भी अगर 10 पारे का हाफिज हो तो 2 लाख रुपए लेके जाना और किराया भाड़ा भी दूंगा 50,000 एक्स्ट्रा। और ये रिकॉर्डिंग पुलिस थाने में सुना देना कि साहब इसने कहा था 2 लाख रुपए देने का, हम 10 पारे का हाफिज ले आए काफिर को। ठीक, हाफिज कुरान कादियानी होता है या नहीं होता है? नहीं होता, 10 पारे भी नहीं होंगे ना, मैं कहता रहा हूँ। क्या नहीं होंगे? देवबंद वालों में एक से कारी बेहतरीन हाफिज होते हैं, पक्के हाफिज होते हैं, इमाम हरम सबके सब हाफिज होते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम सबके सब हाफिज होते हैं, कारी होते हैं, आलिम होते हैं, मुहद्दिस होते हैं, मुफ्ती होते हैं, मुफस्सिर कुरान होते हैं। और काबे शरीफ का इमाम ऐसी क़िरात पढ़ता है कि हिंदुस्तान में कौन पढ़ेगा? ईमान की दलील नहीं, और कुरान का हिफ्ज करना ईमान की दलील नहीं। अच्छा, फिर काय की दलील? कुरान का हिफ्ज करना ईमान की दलील नहीं है। बाइबल को याद करना, बाइबल को याद करना ईमान की दलील है, इंजील को याद करना ईमान की दलील है, तौरात को याद करना ईमान की दलील है,
ज़बूर को याद करना ईमान की दलील है, रामायण को याद करना ईमान की दलील है, फिर क्या ईमान की दलील है? अल्लाह के रसूल का फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो फरमान रसूल के मुताबिक वो इमाम हरम बेहतर है। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हुजूर ने फरमाया नुसिरत बिर्रौब मसीरत शहरिन, कि मेरी अल्लाह ने मदद फरमाई रौब के जरिए 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। फाजिल बरेलवी ने कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़े इख्तियार में। और अज़हरी मियां ने कहा नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, जिसको जो चाहे अता कर दें, जो चाहे अता कर दें। इस्लाम के 5 रुकन बता दीजिए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, ये अज़हरी मियां ने कहा था। तो आप अपना इमाम मांग लीजिए, एक अपना इमाम मांग लीजिए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाकर एक अपना इमाम मांग लीजिए, 5 रुकन मसलक के आला हज़रत वाला इमाम मांग लीजिए एक जाके। हजरत इस्लाम के 5 रुकन क्या है वो बता दीजिए। अब आपको इधर घुमा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अज़हरी मियां ने कहा नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। अज़हरी मियां ने कहा बेशक हक है, इसमें कोई दो तो एक इमाम मांग लीजिए। अच्छा, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। आप बदजुबानी पर उतर रहे हैं, क्या आपका अकीदा नहीं है नबी मुख्तार कुल है? मैं बदजुबानी कर रहा हूँ? बदजुबानी कर रहे हैं आप? आपका अकीदा नहीं है। आपका अकीदा नहीं है क्या नबी? हमारा तो अकीदा है कि नबी के सामने जो इमाम है वो मुसलमान है, सुन्नी है। अच्छा, आपका अकीदा है ये? आपका अकीदा नहीं है कि वो इमाम मुसलमान है, हमारा तो अकीदा नहीं है हमारा अकीदा भाई कि इमाम मुसलमान है, नहीं है हमारा अकीदा है। जब इस्लाम की शर्तों पर वो पूरे नहीं उतरते तो चाहे कुरान के हाफिज तो फिर अज़हरी मियां ने कहा था इसका क्या मामला होगा, क्या मतलब होगा? नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। बेशक हक बात है, क्या आप नहीं मानते? नहीं, आप ही नहीं मानते। आप मैं तो मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नबी तो फिर आप अपना इमाम मांगिए ना, अपना इमाम मांग लीजिए जाके, या रसूल अल्लाह हमें अपना इमाम दे दीजिए सुन्नी मजहब का, आला के मसलक का। हाँ, तो सरकार आला हजरत ने जो उन पर फतवे लगाए उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि अपना इमाम मांग लीजिए। हर साल तो हज करते हैं, तो अपना इमाम क्यों नहीं मांगते? आप अपना इमाम क्यों नहीं मांगते? हर साल हज कर रहा हो आप लोग, तो अपना इमाम क्यों नहीं मांगते? जब अज़हरी मियां ने कहा नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर, जो चाहे। हाँ, तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो इमाम का हरम होगा वो काफिर नहीं हो सकता? बिल्कुल। दलील क्या इस बात की? आपकी क्या दलील है? आपकी क्या दलील है कि वो काफिर है? आपकी क्या दलील है कि वो काफिर है? हमारी ये दलील है कि उनके अकायद बातिला हैं। वो क्या आपने कभी बात की? वो अरबी में बात करते हैं, आपने कभी उनसे अरबी में मुनाजरा किया? इदरीस साहब ने किया, सनाबिल साहब ने किया, शुमाइल साहब ने किया, किसी ने अरबी में उनसे बात की? आपने ये पूछा कि तकलीफ ईमान को क्या मानते हो, सिरात मुस्तकीम को क्या मानते हो, हिफ्ज़ुल ईमान को क्या मानते हो, उसको क्या मानते हो, उसको क्या मानते हो, फतावा रज़िया को क्या मानते हो, फतावा रज़िया को क्या मानते हो, और हिंदुस्तान के आलिमों के बारे में क्या अकीदा है, फतावा रज़िया के बारे में क्या अकीदा, मसलक आला हज़रत को क्या मानते हो, मुफ्ती आज़म हिंद को क्या मानते हो, उनको क्या मानते हो, उनको क्या मानते हो, काज़ी को क्या मानते हो, कलीम हनफी साहब को क्या मानते हो, उनको क्या मानते हो, उनको क्या मानते हो, ये सब बातें पूछनी चाहिए उनसे। सुनिए, जवाब सुनिए। उनका मरकजी इदारा है दारुस्सलाम। कि अगर आप मौलाना हशमत अली साहब को सबसे बड़ा मुनाज़िर मानेंगे तो हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। मेरी बात उनसे कहो इमाम हरम से जाके। नहीं, वो क्यों माने? वो मान ले तो वो सुन्नी ना हो जाए। और ये कहो मौलाना तथीर अहमद साहब के ऊपर आप कुफ्र का फतवा लगाओ, तब हम आपको सुन्नी मानेंगे। मौलाना तथीर अहमद साहब की बातें वहाँ तक पहुँच जाए तो बड़ी बात है। क्या? हाँ, मौलाना तथीर की बातें वहाँ तक पहुँच जाए तो बड़ी बात है। नहीं पहुँचेंगी। कहाँ पहुँचने वाली उनकी बातें? अब तो कह रहा हूँ ना, गलत सलत बातें लिखी हैं, मतलब यही है आपका? क्या गलत बातें लिखी हैं? लिखी गलत सलत बातें हैं? उन्होंने गलत बातें लिखी हैं तो उनको लोग छोड़ देते, बरेली के लोग, बरेली के पास में तो रहते हैं। सुनिए, ये बात सुनिए मेरी। हज़रत साहब, अज़हरी मियां ने फतवा लगाया। हज़रत साहब, उम्मत को गुमराह मत करो। आज हमारी मोबिलिटिंग हो रही है, आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, आज हमारे ऊपर तरह तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, कल कुछ हो जाता है, परसों कुछ हो जाता है। देवबंद वाला बरेली की टांग खींचे, बरेली वाला देवबंद की टांग, हशमती दर्दी की टांग खींचे, गजनवी हशमती की टांग खींचे, बम्बई वाला पीलीभीत वाले की टांग खींचे, पीलीभीत वाला बम्बई की टांग खींचे, घोसी वाला इनकी टांग खींचे, कछोचे वालों की कछोची वाले घोसी वाले की टांग खींचे, अशरी अज़हरी की टांग खींचे, अज़हरी अशरी।
और इधर कुतुब नेपाल को काफिर कह दिया मुफ्ती जैश मोहम्मद को कलीमी साहब ने काफिर कह दिया, उबैदुल्लाह खान को गौसी वालों ने काफिर करा दिया, मुफस्सिर आज़म हिंद हज़रत काई वही साहब को गुमराह करा दिया। हज़रत साहब हम लोगों को चक्कर में मत डालो, सुन्नियत में इंतशार फैला रहे कट्टर हो। सुन्नी बनो आप, कट्टर सुन्नी हो आप, तो कट्टर सुन्नी हो नहीं, आप कट्टर सुन्नी हो, मैं आपके मुकाबले नहीं हूँ कट्टर सुन्नी, मैं कट्टर नहीं हूँ, जैसे आप कट्टर हो, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर हो, इसलिए कट्टर हो कि आपने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा, तो आप बिल्कुल कट्टर में कट्टर सुन्नी हो आप। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम और आप कलीम हनफी से 10 गुना ज्यादा कट्टर सुन्नी हो। अरे वो छोड़िए बातें, वो बातें छोड़िए, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, अब नमाज भी पढ़ना है।